Hello class 10, this is Pankaj Kumar Yadav, your English teacher, and we have arrived here lesson including all my friends. Reading B, including all my friends. So now it's a poem, so we have to recite in a poetic way, and please watch me very carefully, listen very carefully. After that we have to recite. Now please start. I like to play with all my friends, they like to play with me. I like to play with all my friends, they like to play with me. We play games like hide and seek and climb the backyard tree. I like to play with all my friends, they like to play with me. We play games like hide and seek and climb the backyard tree. We run, jump, and ride a bike. We run, jump, and ride a bike and play the whole day through. When new friend comes around, we let them join us too. When new friend comes around, we let them join us too. Some bad guys came to bother us, some bad guys came to bother us, and we knew what they would say, and we knew what they would say. Bad was about our skin, or hair, how we talk and play, how we talk and play. We didn't want to hear their words, we didn't want to hear their words. We know they are not right, we know they are not right. There's so much more to all of us, there's so much more to all of us. If we use more than our sight, we use more than our sight. We all have different skin and eyes. We all have different skin and eyes. We all have different hair. We all have different hair. Some need special tube to breathe. Some need special tube to breathe. Some need special chair. Some need special chair. But really we all the same. But really we all the same. We play, laugh and we sleep. We play, laugh and we sleep. The mean guys had it wrong because the mean guys had it wrong because they only look skin deep. They only look skin deep. This way you have to recite this poem. And after reading the poem, we come to the explanation or the sense of this poem. The sense of the poem is that the author, Randy Bassett. The author is Randy Bassett. Author is having a Divyang child, a Divyang daughter. So he was associated with a firm or with the NGO like Opening Hearts. And whatever he has suffered or her daughter has suffered, he is just expressing the emotion of a daughter or a Divyang child. Now, in this poem, what's happening there? There is Divyang child and that is expressing his feeling. How? He's saying that मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं और मैं भी उनके साथ खेलता हूँ. हम सभी तरह के गेम खेलते हैं, जैसे छुपा छुपाई खेलते हैं तो हम कोई पेड़ के पीछे छिप कर खेलते हैं या और घरों में छिप कर खेलते हैं. हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है ना कि मैं दिव्यांग हूँ या मेरा रंग इस तरह का है या मैं इस जाति का हूँ, है ना. इस तरह से कोई भेदभाव नहीं होता. हम साइकिलें चलाते हैं तो उसमें भी हम एंजॉय करते हैं. कभी गड्ढों में चलाते हैं, कभी रोड पे चलाते हैं, कभी खेतों में चलाते हैं, है ना. दिन भर हम एंजॉय करते हैं. हमारे बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं होता कि हमारा कलर क्या है, ठीक है, हमारे बालों का रंग क्या है, हमारी चमड़ी का रंग क्या है. इस तरह से कोई भेदभाव नहीं होता. हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, इस तरह से कोई भेदभाव नहीं होता, जबकि मैं दिव्यांग हूँ. उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बीच भेद पैदा करना चाहते हैं. कुछ लोग चाहते हैं कि वो हमें अलग दृष्टि से देखें, हमारे ऊपर कमेंट पास करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, ठीक है. हमें कहते हैं कि भाई तुम तो इस जाति के हो, तुम्हारा तो ये काम ही नहीं है, तुम यहाँ मत खेलो. मतलब अलग अलग तरह से कमेंट
करते हैं कुछ लोग, लेकिन हमें उनके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग हर समाज में होते हैं जो दूसरों को गलत नज़र से देखते हैं, जो दूसरों की भावनाओं को समझते नहीं हैं। भाई हम दिव्यांग हैं इसका मतलब क्या हमारे अंदर भावना नहीं है? हम भी तो एक इंसान हैं, हमारा मन भी तो खेलने का करता है, हमारा मन भी तो आम लोगों जैसा ही व्यवहार करने का मन करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भेदभाव करना पसंद करते हैं, लेकिन हमें उन सब के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ना तो मैं चिंता करता हूँ, ना मेरे दोस्त चिंता करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके कहने से न तो हमारी दोस्ती टूटने वाली है, ना हमारा संबंध फीका पड़ने वाला है। ठीक है, हमारा संबंध तो और गहरा हो जाएगा। हमारी आँखें किस रंग की हैं या हमारे जो त्वचा है वो किस रंग की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर हमारे मन में किसी तरह का भेदभाव है ही नहीं, तो फ़र्क क्यों पड़ेगा? भले ही हम दिव्यांग हैं, हम में से कुछ जो है किसी का सहारा लेकर चलते हैं। ठीक है, कभी किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, किसी को सांस लेने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसी को देखने के लिए, किसी को सुनने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत तरह की हमें असमानताएं हैं या हमें दिव्यांगपना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर की भावना ही ख़त्म हो गई है, हम इस समाज में रहने के लायक नहीं हैं। हम ऐसा नहीं सोचते। हमारी एक अपनी दुनिया है जिसमें हम बड़े एंजॉय करते हुए उसे जीते हैं। बाहर वाले हमें क्या बोलते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी तो दूसरों के जैसे ही हंसते हैं, खाते हैं, हम भी तो खाना खाते हैं, दूसरे भी तो खाना खाते हैं। क्या वो अलग खाना खाते हैं? नहीं। तो लेकिन बोलने वाले बुरा बोलते हैं, तो हमें उससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, और न मुझे पड़ता है, न मेरे दोस्तों को पड़ता है। यही रैंडी बेसेंट इस लेसन में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की बच्ची जो है वो दिव्यांग है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन है। एक बार आप इसको पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आया और इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।